Hello everyone, I am Shomukantigiri. Welcome to my channel. In this video, we will discuss how to do PhD after MPharm. Okay, if you want to do PhD after MPharm, then what are the options in front of you? In this video, we will discuss all the options in detail. If you are a serious candidate, then please see the video till the end. I hope all of you will be benefited. So, this is a brief introduction about myself. Let's start. If you want to do PhD, then you can do it in India or in abroad. But in this video, we are not discussing the PhD in abroad. In India, you can go with fellowship or without fellowship. If you want to do PhD with fellowship, then there are different institutions, there are different government organizations, those can provide you a good amount of fellowship. But if you don't want to get a fellowship but you want to enroll yourself for PhD, then this is a separate topic and you can enroll yourself to any UGC recognized university for PhD. We are not discussing these two in this video. Okay, our main focus is to discuss how to do PhD in India with fellowship in this video. Please see the video till the end. देखो क्या होता है, इफ यू वांट टू डू पीएचडी इन इंडिया विथ फेलोशिप, देन यू कैन गेट थ्रू by cracking different exams like NIPER JEE PhD, CSIR NET, then ICMR BRET exam, DBT BET exam. These 4 exams are the flagship exams in India if you are coming from the life science or pharma background, or better to say biomedic background, then these 4 options are best for you. Which are the options? NIPER JEE PhD, CSIR NET, ICMR BRET exam and DBT BET exam. Okay, so in case of CSIR NET, you can apply for chemical sciences and life sciences, each of these 4 exams like NIPER JEE PhD, CSIR NET, ICMR BRET exam and DBT BET exam will be discussed in detail later part of this video. Don't worry. But if you don't want to crack these exams but you want to do PhD with fellowship, then project fellowship is an option in front of you. Let's say Professor X, he is currently holding professor post in Jadavpur University, let's say, and you are willing to do PhD under him. After few days, Professor X got a grant from DST, Department of Science and Technology. मान लो 45 lakhs उनको मिला है for research. Then this Professor X will invite applications from the candidates to hold a position called JRF in his lab, Junior Research Fellow. Okay, and you people will apply for that particular post, and the Professor X will choose someone who is capable to hold that post. For that requirement, you must have to crack GPAT or GATE exam. If you don't want to qualify NIPER JEE PhD or CSIR NET or ICMR BRET exam or DBT BET exam, then you must have to qualify GATE or GPAT exam if you are aspiring for PhD. I hope this is clear to you. And there are some institutes, private and government, they also provide, especially private institutes like BITS, Pilani, BITS Hyderabad, okay, all these institutes, Manipal, all these institutes also provide institutional fellowship. For that, you have to crack their respective exams. Okay, so these are the different options in front of you if you want to do PhD in India with fellowship. I hope this is now clear to you. Then coming to the NIPER JEE PhD. Okay, in case of NIPER JEE PhD, you can opt for chemical sciences if you are coming from medicinal chemistry background or pharmaceutical chemistry background or pharmaceutical analysis background. You can opt for chemical sciences. If you are coming from pharmacology background, then your choice will be biological sciences. And if you are coming from pharmaceutics background, then
you can opt for pharmaceutical sciences, and medical devices candidate, they will opt medical device. Okay, so these four important pillars are there, four important categories are there on which you can apply for नाइपर जेई पीएचडी. ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नाइपर जेई के लिए? नाइपर जेई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, नाइपर जेई क्रैक करने के लिए आपको जीपैट और गेट आपको क्वालिफाई करना है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है. उसके बाद आपको जो बी फॉर्म सॉरी जो एम फॉर्म आपका है वहाँ पे CGPA एटलीस्ट 6.75 रहना चाहिए आउट ऑफ 10 और 60%. एनी वन ऑफ दिस टू विल बी एप्लीकेबल. उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे नाइपर जेई पीएचडी के लिए. लेट्स कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न फॉर नाइपर जेई. ओके, देखो एग्जाम टाइप क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट CBT बैकग्राउंड होता है, CBT टेस्ट होता है एंड MCQ टाइप होता है. ठीक है, वहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस रहता है और ये जो 200 क्वेश्चंस वहाँ पे है दे आर डिवाइडेड इनटू फार्मा सेक्शन एंड नॉन फार्मा सेक्शन. ओके, इन केस ऑफ फार्मा सेक्शन बेसिक बी फॉर्म लेवल का भी क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं. उसके साथ साथ आप जिस मतलब जो भी सब्जेक्ट से है उनका एम फॉर्म और मास्टर्स लेवल का भी क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं. ठीक है, तो बी फॉर्म लेवल का क्वेश्चन, उसके साथ साथ मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन. मान लो you are coming from pharmaceutics background, then they will ask you on the topics like what you have read in your M.Pharm or master's program, like ACAT model. ACAT model, all of you know that it's a very important topic in case of biopharmaceutics. I hope if you are from pharmaceutics background, then you should have to know what is ACAT model. Okay, so they can ask you different questions on ACAT model. They can ask you different questions on drug regulatory affairs. Okay, so in pharma sections they ask you topics on basic GPAT level का जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछ सकता है. उसके साथ साथ आपका जो मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है वहाँ से भी पूछ सकता है. ठीक है, टोटल 120 minutes will be given and for each correct answer you will get 1 marks and for each wrong response 0.25 marks will be deducted. Okay, देन कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस. व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा नाइपर जेई के लिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा. फाइनल मेरिट लिस्ट, आफ्टर इंटरव्यू फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंडक्टिंग अथॉरिटी एंड योर सिलेक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिलिंग. ओके, नाइपर जेई में क्या होता है, एक सेंट्रल काउंसिलिंग होता है. This year in 2025 the central counseling was conducted by NIPER Mohali because NIPER JEE was conducted by NIPER Mohali. That's why the central counseling was also conducted by the NIPER Mohali. So this is the selection process. Then coming to CSIR net. देखो CSIR net में क्या होता है, CSIR net में कोई भी आपको सेंट्रल काउंसलिंग नहीं होता है. नो सेंट्रल काउंसलिंग. ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग वहाँ पे कोई भी नहीं होता है CSIR नेट में. ठीक है, वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अलग है, कंडक्टिंग एजेंसी भी थोड़ा अलग है. सो लेट्स डिस्कस NTA. यहाँ पे CSIR नेट में क्या होता है, NTA कंडक्ट करवाता है. ठीक है, ये जो CSIR नेट एग्जाम है ना साल में 2 बार होता है, बट नाइपर जेई पीएचडी साल में 1 बार होता है. ठीक है, ये CSIR नेट जून में भी होता है एंड दिसंबर में भी होता है. ठीक है, CSIR नेट जून एंड दिसंबर साल में 2 बार होता है. ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट you have n number of opportunities, like you can opt IISc Bangalore, you can opt different IITs, you can go with different IISERs, NITs, NIPERs or different CSIR labs. After qualifying JRF Junior Research Fellow through CSIR net, you can apply to these institutes. Okay, and an interview will be conducted by those institutes respectively. उसके बाद if they think that you are eligible for IIT Ropar or you are eligible for IISER Mohali, then IISER Mohali will call you to do PhD. But आपको यहाँ पे कोई भी सेंट्रल काउंसलिंग नहीं होता है. आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट JRF you have to apply to the different institutes. Separate merit lists will be prepared by the different institutes. I hope it is clear to you. If
you are confused, then I have made a dedicated video versus Sniper JE with Sniper JE versus CSIR net. I am giving the link in the description box as well as in the I button section. Please have a look. So ये है CSIR नेट का मसला, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? CSIR नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको, इफ यू आर फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड और अनरिजर्व्ड बैकग्राउंड देन 55 मार्क्स आपको चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम EWS देन ऑल्सो 55 मार्क्स आर रिक्वायर्ड। बट इफ यू आर OBC, SC, ST, PWD देन आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन इफ यू आर फ्रॉम बैचलर प्रोग्राम लाइक B.Pharm, 4 ईयर का कोई बैचलर प्रोग्राम है, then you are also eligible to do PhD after fulfilling all the requirements, all the norms. For these to check in detail to the websites of CSIR net. CSIR net में फेलोशिप का अमाउंट क्या होता है? देखो, फर्स्ट 2 years you will be only JRF, जूनियर रिसर्च फेलो, फर्स्ट 2 years। उसके बाद आपको SRF में कन्वर्ट, you will be eligible to go with SRF after 2 years. ओके देखो, JRF 2 साल के लिए होता है, उसके बाद आप SRF में ट्रांसफर हो जाओगे। बट ये जो SRF में प्रोमोटेड अब हो जाओगे ना, यहाँ पे क्या होता है, एक रिव्यू होता है, ठीक है। 2 साल के बाद आपका एक रिव्यू होगा, वो जो एक्सपर्ट कमिटी है वो डिसाइड करेगा आप SRF होगा कि आपका नहीं होगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो आप जब JRF रहोगे तब आपका स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 पर मंथ, ठीक है। उसके साथ साथ एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट 20,000। ओके, SRF के लिए आपको मिलेगा 42,000 पर मंथ एंड HRF, ठीक है। ये होता है आपका CSIR नेट का फेलोशिप अमाउंट। स्नाइपर JE में भी लगभग सेम ही मिलता है, 35,000 करके मिलता है, ठीक है। 35,000 ऑलमोस्ट मिलता है स्नाइपर JE में। एंड यहाँ पे अपर लिमिट होता है 30। if your age is below 30 then you are eligible for CSIR net JRF, ठीक है। but there is no limit, no age limit for Sniper JE PhD। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, देखो, स्टूडेंट्स फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड कैन अप्लाई फॉर केमिकल साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस। if you are from pharmaceutical chemistry or medicinal chemistry background then chemical sciences will be your choice, will be your preference, and if you are from biological background like pharmacology or biotechnology then life science will be your preference। so in case of life science देखो, पार्ट A में टोटल 20 क्वेश्चंस होता है, पार्ट B में 50 क्वेश्चंस एंड पार्ट C में 75 क्वेश्चंस, टोटल 145 क्वेश्चंस आर देयर। पार्ट A का जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मार्क्स होता है 2, पार्ट B का भी मार्क्स होता है 2, पार्ट C का मार्क्स होता है 4, ईच क्वेश्चंस आर ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे 25% डिडक्शन होता है ऑल सेक्शंस के लिए। देखो, पार्ट A में क्या होता है क्वेश्चंस, पार्ट B में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट ये पहले समझ लो, जो क्वेश्चंस का वेटेज है पार्ट A एंड पार्ट B में सेम है, बट पार्ट A एंड पार्ट B में सेम है, बट पार्ट C में सेम नहीं है, डबल है, ठीक है। इन केस ऑफ केमिकल साइंसेस पार्ट A में 20 क्वेश्चंस होता है, पार्ट B में 40 क्वेश्चंस होता है, पार्ट C में 60 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस आर देयर। एंड यहाँ पे भी देखो 2 मार्क्स एंड यहाँ पे 4 मार्क्स, सेम 25% डिडक्शन फॉर ईच रॉन्ग रेस्पॉन्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी पार्ट A में क्या होता है। देखो, पार्ट A इज कॉमन फॉर ऑल। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ठीक है। और मैंने भूल गया था मेंशन करने के लिए, ठीक है, जो स्नाइपर JE में जो नॉन फार्मा का जो पोर्शन है ना, वहाँ पे भी एप्टीट्यूड, जीके, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग, फाजिल, सीरीज फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चन पार्ट A में रहता है, ठीक है। पार्ट B एंड पार्ट C दीज आर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट रहेगा लाइफ साइंस और केमिकल साइंस, वहाँ पे ये जो क्वेश्चंस पार्ट B वाला एंड पार्ट C वाला वो आता है, ठीक है। पार्ट B वाला थोड़ा इजी रहता है कंपेरेबल टू पार्ट C, एंड पार्ट C में क्या होता है, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होता है आपका टॉपिक में, आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ से जो एनालिटिकल क्वेश्चंस बनता है वो पार्ट C में रहता है, दैट्स वाई पार्ट C हैज हायर वेटेज। देन कमिंग टू ICMR ब्रेड एग्जाम। देखो, ICMR ब्रेड एग्जाम ना, पहले ICMR JRF एग्जाम था, ठीक है। रिसेंटली
the name has been changed to ICMR BRED exam like CSR net. It is also an examination equivalent to CSR net. ठीक है, सो यहाँ पे पर्पस क्या होता है, देखो JRF के लिए होता है, ठीक है, ICMR BRED एग्जाम JRF के लिए होता है। आप क्वालिफाई करोगे तो आपका स्टाइपेंड फेलोशिप मिलेगा, JRF का फेलोशिप मिलेगा, आप वो फेलोशिप लेके आप कोई भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। ठीक है, कंडक्टर कौन है, कंडक्टर यहाँ पे ICMR है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी है वंस इन अ ईयर। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ICMR BRED एग्जाम एंड CSR नेट एग्जाम। CSR नेट साल में 2 बार होता है, ICMR BRED एंड नाइपर JEE साल में 1 बार होता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, 55% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, अब SC ST हो तो 50% में भी हो जाएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे देखो फेलोशिप का अमाउंट भी सेम है, 37,000 JRF के लिए है एंड SRF के लिए 42,000 है। ठीक है, एंड कॉन्टिजेंसी ग्रांट सेम है, 20,000 साल में मिलेगा। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या है देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे भी क्वेश्चंस तीनों सेक्शन में बांटा हुआ है। ठीक है, 3 सेक्शंस आर देयर यहाँ पे। सेक्शन ए क्या होता है, वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड CSR नेट का इक्विवेलेंट, मतलब सेम ही है CSR नेट में, यहाँ पे भी सेम है, जनरल एप्टीट्यूड है सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन बी में क्या होता है, कवर्स क्रॉस डिसिप्लिनरी फंडामेंटल क्वेश्चंस, लाइफ साइंस से क्वेश्चन बनता है सेक्शन बी में। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में आपका जो स्पेशलाइजेशन है वहां से क्वेश्चन बनता है। स्पेशलाइजेशन मतलब देयर आर टोटल 11 specialized sections in case of ICMR BRED exam. You can opt any one of them. If your specialization is forensic sciences, then section C will be composed of forensic sciences questions. Okay, so if you are eligible, if you are opting for biophysics, then section C will be composed of questions from biophysics. Okay, सो यहाँ पे मार्क्स क्या होता है, टोटल 150 क्वेश्चन आर देयर। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड सेम 25% डिडक्शन फॉर एवरी रॉन्ग रेस्पॉन्स। ओके, कमिंग टू DBT BED एग्जाम। DBT BED एग्जाम ये भी साल में 1 बार ही होता है। ठीक है, ये भी साल में 1 बार ही होता है एंड इफ यू आर डन विथ योर मास्टर्स डिग्री और बैचलर डिग्री मतलब BTech BE MBBS, ओके, और मास्टर्स MSc MTech, ओके, M.Pharm integrated MSc in any discipline of biotechnology, life science such as biomedical, bioinformatics, then you are eligible. बट ये जो DBT BED एग्जाम होता है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट करवाता है, मतलब जो फंडिंग एजेंसी है वो DBT है। DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ICMR जो एग्जाम जो देखा था हमने ICMR BRED, यहाँ पे फंडिंग एजेंसी है ICMR। ठीक है, ICMR एंड DHR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। देखो these आर द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे कंडक्ट टेस्ट एंड इफ यू हैव क्वालिफाइड दोस टेस्ट देन यू आर एलिजिबल। ओके, सो यहाँ पे DBT BED में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मास्टर्स में मार्क्स क्या चाहिए, मार्क्स 60% एटलीस्ट इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैंडिडेट एंड इफ यू आर फ्रॉम SC ST बैकग्राउंड देन एटलीस्ट 55% मार्क्स आपको चाहिए मास्टर्स में। ठीक है, एज लिमिट अप टू 28 ईयर्स। ओके, अप टू 28 ईयर्स एंड एज रिलैक्सेशंस आर देयर, 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड मेन और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और वुमेन कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का जो ये मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट को भी 3 साल का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी और BED एग्जाम का सिलेबस मतलब एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे देखो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, ये जो सेक्शन ए है यहाँ पे देखो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिक, वो सब वगैरह जो क्वेश्चन होता है, रीजनिंग वगैरह जो क्वेश्चन, वो सब सेक्शन ए में पूछते हैं। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। देखो 1 नहीं 3 मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट response, but for each wrong response 33% will be deducted. That means 1 marks will be deducted for each wrong response, but for each right response you will get 3 marks. Section B will be content questions from biotechnology. If you want to know each of these exams in detail, then please let me know in the comment section below.
I will make a dedicated video on different exams, okay, which you will mention. So this is the end of our video. Hope all of you like the video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.